And let's put out the news break that is coming in. This one from Jammu, where earthquake tremors have been felt. It's a massive earthquake as per initial inputs in Jammu and Kashmir. Yet to know the intensity of this earthquake, but initial reports indicate that strong tremors have been felt in parts of J&K region. We'll go across to Zeenat and Gursimran as well to get us the details, and even Arawat, who's tracking the latest from the valley. But for now, it seems that massive jolts have been felt in parts of Jammu and Kashmir. Let's go across to Arawat. He's joining us with more details on that. Arawat, if you can give us details, where have the tremors been felt in the J&K Valley? Absolutely, Shwangi. It was around 12:28 when the massive tremors felt in the Jammu and Kashmir, and people are coming out from their homes to move to a safer locations across the Kashmir Valley. The massive tremors felt in North Kashmir's Baramulla, Kupwara, and South Kashmir's Anantnag districts, and there is possibility that the very light damage may took place in some places, as we have seen some landslides took place in the North Kashmir, as we are getting the reports from the various places in the Kashmir Valley that the tremors have felt, and the rescue operation is going on the various locations. In fact, the authorities have alerted many contact numbers and control rooms in the various districts to access the details what has happened in the various areas in the Kashmir Valley. So far, the massive tremors have felt in the parts of the Jammu and Kashmir so far, and we have seen that people are coming out from their homes and moving to their safer locations to get some relief, and authorities are in action, and they are in touch with the ground officers who have just shifted from the, in fact, we'll talk about the district magistrate officers have directed all the officers and the Jammu and Kashmir police. In fact, fire and emergency department has been alerted within the seconds to access the details on ground, what has happened in the parts of Kashmir, as we have seen. And we got also reports from the various parts of the Kashmir, as still we are getting the reports that after the tremors that felt in the Kashmir Valley, if we'll talk, and we are getting to know. आप सबको पता है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट माह फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी। वो रिपोर्ट 4 खंडों में थी, जिसमें खंड 2 और खंड 4 ड्राफ्ट कोड के अंग्रेजी और हिंदी कॉपीज थी। खंड 1 और खंड 3 रिपोर्ट्स थी। यूँ मान लीजिए कि जो कोड बनाया गया उसके पीछे क्या सोच थी, किन चीज़ों का अध्ययन किया गया, उनका उल्लेख खंड 1 में था, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में थ्योरी कर सकते हैं। और खंड 3 में जो फील्ड विजिट्स की गई थी, उस दौरान समिति को क्या बताया गया, लोगों के फीडबैक किस प्रकार के आए, उसका उल्लेख और उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश की गई। खंड 2 और खंड 4 पर कार्य प्रारंभ किया गया राज्य सरकार द्वारा, और जैसा कि आप जानते हैं कि संहिता अब नोटिफाई की जा चुकी है। ऐसा करते करते ठीक लोकसभा के चुनाव के पहले का समय आ गया, और जो कमेटी के जो रिपोर्ट थी, जो 4 खंडों में थी, जिसमें 2 ड्राफ्ट कोड थे और जैसे 2 मैंने रिपोर्ट्स बताए, ये आम जनता के साथ साझा नहीं किया जा सका क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई। अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस बीच में नियमावली बनाने के संबंध में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्यगण आप मंच पर आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी को आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं परिचय करा सकता हूँ, वैसे मेरा ख्याल आप सभी लोगों को जानते हैं। वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आज यह रिपोर्ट अपलोड होगी
और इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग उस पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो ये तो क्यों आप लोगों को बुलाया गया और क्या मकसद है इसके पीछे अगर आप उचित समझे तो अब इसका लोकार्पण कर दिया जाए, ठीक है? तो लाइए लोकार्पण करिए। आप जी पीछे मुझे तो इससे करना है ना। चलिए शुरू कीजिए। हाँ ठीक है, क्लिक। ये आप देख रहे हैं कि उस वेबसाइट पे हम पहुंच गए। अब क्या हुआ? ये तो काम नहीं हुआ। चला गया वैसे। क्या हुआ? ये तो काम नहीं हुआ। इनपुट चेक करिए। खैर ये वेबसाइट है जिसपे कि जो मैंने आपको वेबसाइट बताया उसी का अनावरण हुआ। उस वेबसाइट पे जाके आप 4 खंडों में रिपोर्ट और 2 खंडों में वैसे एक बार मैं भी नोट करता हूं, इसमें छोड़ दीजिए, आपके बात ज़्यादा समझ में आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है। अब ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके आज के इस आयोजन को 2 प्रकार से चला सकते हैं। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट हमने सबमिट की थी, उस समिति ने जो सबमिट की थी उसके बारे में, चूँकि मैं भी उसका सदस्य था, मैडम भी सदस्य थी, मनु जी भी सदस्य थे, तो हमें जानकारी है। हम आपको बुलेट पॉइंट के रूप में चैप्टर वाइज उसकी मेन बातें आपके सामने रख दें, ताकि आप अगर रिपोर्ट पूरी न भी पढ़ पाएँ तो आपके बुलेट पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। और उसके पश्चात यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं हो तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एक मिनट। दूसरा ये है कि आप केवल जिज्ञासा करें और हम आपकी जिज्ञासाओं को उत्तर दें और रिपोर्ट आप बाद में चल के पढ़ लें। यदि बुलेट पॉइंट्स हम बताएंगे तो उसमें मुझे लगता है कि अनुमानतः कम से कम 20 मिनट तो जरूर लगेगा, चूंकि इतनी रिपोर्ट है। यदि आप सुनने को इच्छुक हैं तो मैं बुलेट पॉइंट्स ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 4 था वो ड्राफ्ट कोड की कॉपी थी। उसमें तो बहुत ही मिनिमल कुछ चेंज के बाद एक्ट प्रख्यापित किया जा चुका है, तो वो आप देख चुके हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं रिपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 क्रमशः हमारी रिपोर्ट्स हैं। वॉल्यूम 1 जो रिपोर्ट है